So today's topic is velocity time graph for uniform motion. कि when a body is moving with uniform motion, what will be the shape of its velocity time graph? तो ये हम आज पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है velocity versus time. velocity versus time. तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका for uniform motion, it will be a straight line AB पर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा. ये बताऊँ कैसे आएगा ये ग्राफ. फॉर एग्जांपल हम लेंगे ग्राफ यहाँ बताऊंगा मैं आपको. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो फॉर एग्जांपल a body is moving with a constant velocity, we say 4 मीटर पर सेकंड. यानी बॉडी एक 4 मीटर वेलोसिटी से चल रही है. कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. यहां मान लो आप. आफ्टर सम टाइम से 2 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी वही है 4 मीटर पर सेकंड. आफ्टर सम टाइम से 5 सेकेंड्स इसकी सेम वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड. आफ्टर टाइम ऑफ 6 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी वही है 4 मीटर पर सेकंड. यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम रहती है. तो टाइम गुजरता है. आफ्टर पासिंग ए टाइम इट इज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम. So when we will draw the graph, so the graph will be a straight line. It will be a straight line graph parallel to time axis. Time axis के parallel होगा ये. It means when a body is moving with uniform motion, it means when a body is moving with constant velocity. उसकी velocity constant होगी, तो उसका जो graph बनेगा, that will be parallel to time axis. वो time axis के parallel होगा. तो ये मैंने बनाया यहाँ पे graph. AB is the graph of the body which is moving with a constant velocity. Uniform motion, we can say uniform motion. Uniform means it has 4 meter per second at every instant of time. Its speed is and its velocity is 4 meter per second. तो ये इसका ग्राफ है AB. It is parallel time axis. OT हम लिया, ये x axis लिया हमने, x axis, और यहाँ से y axis है. तो हमने x axis पे टाइम लिया है, y axis पे हमने velocity ली है. तो ये constant velocity है, parallel time axis. Now, what is the importance of this graph? तो इस ग्राफ से हम क्या हासिल कर सकते हैं? What we can get from this graph? From this graph, we can calculate the displacement of the body between any 2 points. किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं by using this graph. तो वो कैसे हम निकालेंगे वो बताऊंगा मैं आपको. बहुत ही सिंपल है. Let us take 2 pointers C and D on this graph. 2 पॉइंट लिए मैंने यहाँ पे C और D. तो यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ की है C1 परपेंडिकुलर इस पे, और D1 भी परपेंडिकुलर है. Now we wish to know what will be the displacement of the body between point C and D. and C और D के दरमियान बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, वो कैसे हम निकालेंगे इस ग्राफ से. तो क्या करेंगे हम, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है, that is equal to velocity into time. Displacement is equal to velocity into time. Now what is velocity? यहाँ पे velocity कितनी है इस ग्राफ में. तो velocity जो हमारी है 0 से यहाँ तक, वो v हमने ली है. तो body is moving with a constant velocity v. So its velocity is v into what is the time? टाइम कितना लगा है इसको C से D तक पहुंचने में. इस टाइम इंटरवल, दैट इज ये T2 यहाँ पे है, दैट इज T2 minus T1. T2 minus T1 is a time interval between C and D. So it is T2 minus T1. T2 minus T1. Now, what is V? V is OA. It is OA line segment and OA is equal to C1. तो हम इस V के बदले लिखेंगे OA या लिखेंगे हम C1. तो हम लिखेंगे यहाँ पे it is C1 into what is T2 minus T1. T2 minus T1 is D1 C1. ये लाइन है D1 C1, या लिखेंगे हम C1 D1. So into C1 D1. Now अब देखो C1 into C1 D1. This is the length into breadth of the rectangle. क्योंकि CD D1 C1 जो है ये रेक्टेंगल बनता है, और जब हम इसकी लेंथ लेंगे multiply by breadth करेंगे, that gives the area of the rectangle. That is C1 into C1 D1 is the area of this rectangle. तो हम लिखेंगे यहाँ पे it is area of a rectangle CD C1 D1. So when we know the area of this rectangle, so that area will give us the displacement of the body from
बिटवीन सी एंड डी, यानी सी और डी तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, सिंपली वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें आता है 10, इट मीन्स 10, अगर से एरिया हमें आता है 10, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स। उसका मतलब जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है सी से डी तक वो है 10, वो हम मीटर्स में लेंगे 10 मीटर्स। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या है ये ग्राफ, आई विल रिपीट वंस अगेन दिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body moving with a constant velocity is simply a straight line parallel to time axis. Straight line parallel to time axis simply. And from this graph, we can calculate the displacement of the particle or body between any two given points. For example, we have 2 points C and D. तो C से D तक body का displacement कितना होगा? तो for that, we will draw perpendiculars C1 and D1 on this time axis. Now, C1 D1 is a rectangle. तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यहां से यहाँ तक हमने v ली है, इट इज v इनटू टाइम कितना है, टाइम इंटरवल इज t2 minus t1। सो व्हाट इज v, v इज एक्चुअली oa इज इक्वल टू c1। सो मैंने लिखा v के बदले c1, टाइम इंटरवल t2 minus t1 इज c1 d1, ये c1 d1 लाइन है, तो c1 d1। नाउ c1 into c1 d1 को दिस लाइन लेंथ into ब्रेडथ, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल c1 d1। तो knowing the area of rectangle, it just gives us the displacement of the particle from C and between C and D. अब जो हमारा दूसरा ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां मैंने ग्राफ बनाया है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है वेलोसिटी। सो ये जो ग्राफ है, ये लाइन है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट मींस द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है, बट यूनिफॉर्मली, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे हम, ये मान लेते हैं ग्राफ हमारा है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। क्योंकि अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू, यहाँ वेलोसिटी टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी का एक वैल्यू होगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू होगा, यहाँ पे तीसरा वैल्यू होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर हम स्लोप निकालेंगे, हम यहाँ देखो स्लोप, ये स्लोप है थीटा, एंगल थीटा, जो एंगल स्लोप थी जो इसका है वो बराबर होगा हर पॉइंट पे, स्लोप इज इक्वल, सो इट इज यूनिफॉर्म, इसलिए इसके साथ वर्ड आ गया है यूनिफॉर्म। लेकिन जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, सो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉडी इज एक्सेलरेटेड, सो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ u से स्टार्ट किया हमने, इट मींस द बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने 2 पॉइंट लिए यहाँ पे, पॉइंट्स A एंड B। हम देखेंगे पॉइंट A पे इसकी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी और बॉडी B की एक्सेलरेशन, पॉइंट B पे बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं इससे। तो पॉइंट A पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो v1 है, और पॉइंट B पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो v2 है, और टाइम यहाँ पे t1 है और टाइम यहाँ पे t2 है। तो इस लाइन को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है इसके साथ। सो दिस ABC इज अ राइट ट्रायंगल, नाउ इट्स अ राइट ट्रायंगल। ये जो BC है इट इज v2 minus v1, एक वेलोसिटी है, एक्चुअली BC जो है ये इस पॉइंट इसके बराबर होगी, इस लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। सो दिस लाइन सेगमेंट इज v2 minus v1, सो इट इज v2 minus v1। और ये जो लाइन AC है, सो इट इज दिस लाइन सेगमेंट इज t2 minus t1, इसलिए भी यहाँ पे लिखा है मैंने v2 minus v1 एंड दिस इज t2 minus t1। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हम क्या हासिल कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट नंबर 1 एक्सेलरेशन, हम बॉडी की एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग दिस ग्राफ। तो कैसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड चेंज इन टाइम, सो चेंज इन वेलोसिटी हम लेंगे A से B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई। पॉइंट A पे वेलोसिटी v1 थी,
पॉइंट बी पे वेलोसिटी v2 है, चेंज कितनी हो गई ए से बी तक, v2 माइनस v1, सो इट इज v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइड चेंज इन टाइम। तो इस एरिया में टाइम कितना चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1, तो यहां से यहां तक t2 माइनस t1, सो इट इज t2 माइनस t1। नाउ व्हाट इज v2 माइनस v1, अब यहां निकाला हमने v2 माइनस v1 जो है, इसका जो वैल्यू यहां पे आप देखो v2 माइनस v1 दैट इज bc, वो bc है, और t2 माइनस t1 का वैल्यू है ac, सो इट इज bc डिवाइडेड बाय ac, सो इट इज इक्वल टू bc divided by AC. Now what is BC divided by AC? From the triangle, right triangle, we can conclude that BC divided by AC is perpendicular divided by AC. So it is tan theta. So it is tan of theta. So tan of theta means the slope of the line. वो इस line का slope है. That is slope of line AB. इस लाइन का स्लोप है, तो उसका मतलब है कि इफ वी कैलकुलेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लाइन वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स द एंगल विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सो ये स्लोप निकालेंगे हम, तो स्लोप विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पॉइंट ए पे स्लोप कितना है इस लाइन का, यहाँ देखेंगे पॉइंट ए पे स्लोप कितना है, जो स्लोप यहाँ पे होगा वहां पे उतनी एक्सेलरेशन होगी बॉडी की एट पॉइंट ए। एट एनी पॉइंट on this line we can calculate the slope, and that slope gives us the acceleration of the body. हो गया एक पॉइंट ये। नंबर सेकंड पॉइंट, फ्रॉम दिस ग्राफ we can also calculate the distance traveled by the body in a given time interval, or distance traveled। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है distance traveled। distance ट्रेवल्ड हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। और बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या है, ए से बी तक, ए से बी तक इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो वो निकालते हैं हम v1 plus v2 divided by 2. Average means sum of the quantities divided by total number of quantities. That means v1 plus v2 divided by 2. हमारे पास दो वेलोसिटीज है v1 और v2। अब इनका एवरेज क्या होगा, इन दो को ऐड करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। सो v1 plus v2 divided by 2, एंड टाइम इंटरवल जो है a से b तो वो है t2 minus t1, that is t2 minus t1. So this is average velocity into time interval, that is v1 plus v2 divided by 2 into t2 minus t1. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2 into, now what is v1? v1 actually v1 is यहां से यहां तक v1 है, यानी 0 से यहां तक जो ये लाइन है, ये वेलोसिटी का v1 का वैल्यू है, इट इज v1, दैट मीन्स इट इज दिस वैल्यू, ये लाइन है, दिस लाइन, दैट इज, इसका नाम कुछ देंगे हम यहां पे, जिसका नाम देंगे हम a1, इसका नाम यहां पे देंगे हम b1। सो दिस लाइन यानी v1 जो है, इट मीन्स इट इज a1, एंड v2 जो है यहां से यहां तक है v2, इट इज b1। तो यहां लिखता हूं मैं v1 के बदले, एक्चुअली लिखता मुझे ये v1, अब मैं लिखूंगा ये लाइन, दीज आर इक्वल लाइंस, सो इट इज a1 प्लस, व्हाट इज v2, ये लाइन है v2 यहां से यहां तक, इट इज b1, इट इज b1, and what is t2 minus t1, that is this line, that is simply I'm going to write a1 b1, it is a1 b1। अब अगर हम इस फिगर में देखेंगे 1/2 a1 plus b1, अब देखो a1 plus b1, दिस इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये एक ट्रेपिज्म एक्चुअली है, b1 a1 एक ट्रेपिज्म बनता है, a1 और b1 दो पैरेलल साइड्स है, ये इनका सम है, ये इनका सम है, हम लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू a1 b1। अब देखो देखिए यहाँ पे a1 b1 जो है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/2 ऑफ sum of parallel sides into perpendicular distance, this is the formula for calculating the area of a trapezium।
तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म के लिए ये फॉर्मूला है। उसका मतलब है जो हमारे पास ये जो बन गई हमारे पास ट्रेपिज्म है, तो वो क्या राइट, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। क्या नाम देखिए इसका, A1 एंड B1, A1 B1। नाउ knowing this area of trapezium A1 B1, this will give us the distance traveled by the object। जितना इसका एरिया बनेगा इस ट्रेपिज्म का, उतना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की A से B तक। सो दिस ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट टू थिंग्स, वन इज एक्सेलरेशन जो दिखाई मैंने आपको, by knowing the slope of the graph at any point we can calculate the acceleration of the body, and distance traveled by knowing the area of this trapezium under the curve, जो इसके नीचे आता है, ये एरिया हमने कॉल ये ट्रेपिज्म बनता है, and that area of trapezium will give us the distance traveled by the body। Thanks।